Hello students, this is chapter number 13 and page number 228. In the previous video, we had studied about the Supreme Court and the powers of the justice. And now today, we will study about the administration of the state. Children, you have to read the chapter deeply and carefully. I will give you only summary. So let's start. Under the federal form of government, the central government and state governments discharge legislative, executive, and judicial functions under their jurisdiction. Legislative assemblies under the federal form of government of central and state governments discharge their function in respect of legislature, executive, and judiciary according to their jurisdiction. State legislature. As per the constitution, there shall be a state legislature in every state, which all comprise of the governor and the state legislatures. In some states, there are two houses of legislature, and in some states, there are only one house. There are two houses in Uttar Pradesh, Bihar, and Maharashtra. The first house is called the Legislative Assembly, and the other one is known as Legislature Council. In Madhya Pradesh, there is only one state legislature, that is called Vidhan Sabha. अब गवर्नमेंट के फेडरल फॉर्म में सेंट्रल गवर्नमेंट स्टेट गवर्नमेंट मिलकर के काम करती हैं और वो लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव और जुडिशियल के रिस्पेक्ट में काम करती हैं. कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार हर स्टेट में एक गवर्नर होगा और स्टेट लेजिस्लेचर्स होंगे जो कि मिलकर के राज्य का कार्यभार संभालेंगे. कुछ स्टेट्स में दो हाउसेस हैं, जैसे कि उत्तर प्रदेश, बिहार एंड महाराष्ट्र. हमारे मध्य प्रदेश में सिर्फ एक ही हाउस है, वो है विधान सभा. कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली. In the legislative assembly of a state, there are maximum 500 and minimum 60 members. However, Sikkim, Goa, Mizoram and Arunachal Pradesh are exceptions where the number of members of the legislative assembly is less than 60. अब कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से लेजिस्लेटिव असेंबली में, विधानसभा में मैक्सिमम 500 मेंबर्स हो सकते हैं और मिनिमम 60 मेंबर्स हो सकते हैं. जबकि यहाँ सिक्किम, गोवा, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश ये एक अपवाद के रूप में आते हैं, जहाँ पर जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज हैं उनकी संख्या जो है वो 60 से कम है. ऑर्गेनाइजेशन ऑफ मध्य प्रदेश लेजिस्लेटिव एंड रिजर्वेशन ऑफ सीट्स. The number of members in Madhya Pradesh Legislative Assembly is 230. In the Legislative Assembly of state, seats are reserved for scheduled caste and scheduled tribes. Election of members of the Legislative Assembly. Members for the Legislative Assemblies are elected directly by secret ballot on the basis of adult suffrage. One member is elected from each constituency. The election, a candidate securing highest votes is declared elected. तो चिल्ड्रन, हमारे मध्य प्रदेश की विधानसभा में 230 लेजिस्लेटिव मेंबर्स हैं, लेजिस्लेचर हैं, और यहाँ पर शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब के लिए अलग से सीट उसी में रिजर्व हैं. जैसे कि आप जानते हैं कि इलेक्शन होते हैं और जो भी पार्टी, जो भी कैंडिडेट जो है सबसे ज़्यादा वोट पाता है, हाईएस्ट वोट पाता है, वह इलेक्शन में जीता हुआ माना जाता है. Qualification of voters. Here are given the qualification of voters. You have to read this. Here is also given the qualification of the candidate who will join the legislative assembly. So, candidate should be a citizen of India, completed 25 years of age, should be won any office of profit in the union or state, should not be on any office of profit in the union or state, should not have been declared unfit to contest election and fulfills the condition laid down of parliament or legislative assembly. तो चिल्ड्रन, आपको मालूम ही है कि वोट करने के लिए 18 ईयर्स का होना चाहिए पर्सन, तभी वोट कर सकता है, और वोटर लिस्ट में उसका नाम होना चाहिए, और उसे किसी भी कोर्ट द्वारा अनफिट घोषित नहीं किया हुआ होना चाहिए. अब
जो कैंडिडेट इलेक्शन लड़ते हैं लेजिस्लेटिव असेंबली में जाने के लिए, उन्हें सबसे पहले तो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 ईयर्स के पूरे होना चाहिए। उन्हें किसी भी, चाहे स्टेट गवर्नमेंट से प्रॉफिट मिल रहा हो चाहे यूनियन गवर्नमेंट से, उन्हें प्रॉफिट नहीं मिलना चाहिए। और इसके साथ साथ वो जो है अनफिट डिक्लेयर नहीं होना चाहिए। और पार्लियामेंट एंड लेजिस्लेटिव असेंबली की जितनी भी डिमांड्स है, कंडीशन है, उनको उन्हें फुलफिल करना चाहिए, तभी वो इलेक्शन लड़ सकते हैं। Tenure: a member of Legislative Assembly is elected for 5 years, but the governor, on advice of the chief minister, can dissolve it before completion of the term. Rights of the Legislative Assembly: the members of the Legislative Assembly elect one speaker and one deputy speaker from amongst its members. The speaker and deputy speaker of the Legislative Assembly enjoy the same rights. तो जो टेन्योर है वो 5 इयर्स का होता है, लेकिन यदि गवर्नर चाहे तो चीफ मिनिस्टर की सलाह से वह समय से पूर्व से भंग भी कर सकता है। इसके साथ साथ विधानसभा के जो मेंबर होते हैं वो अपने सदस्यों में से ही एक प्रेसिडेंट और एक वाइस प्रेसिडेंट का चुनाव करते हैं। ये तो हुए लेजिस्लेटिव असेंबली के इलेक्शन किस तरह से होते हैं, टेनर क्या होता है, और उनका जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशन है वो किस तरह से उन्हें बनाने की लिए परमिशन देता है। नाउ पावर ऑफ द लेजिस्लेटिव असेंबली। अब लेजिस्लेटिव असेंबली के पावर्स क्या होते हैं, सो यू हैव टू रीड देम ऑल। द फर्स्ट पावर इज टू फ्रेम लेजिस्लेशन, सेकेंड फंक्शन रिलेटिंग टू द एग्जीक्यूटिव्स, फाइनेंशियल फंक्शंस एंड अदर पावर्स। तो जो विधान सभा में विधि का निर्माण होता है, लॉ का निर्माण होता है, वो निर्माण कर सकते हैं, बना सकते हैं कानून, लेकिन वो जो हमारी जो पार्लियामेंट यदि किसी सब्जेक्ट पर पहले ही लॉ बना चुकी है तो वह जो स्टेट गवर्नमेंट है उसके द्वारा बनाया हुआ लॉ उसके अपोजिट नहीं हो सकता। जो विधानसभा के सदस्य होते हैं वो राष्ट्रपति के इलेक्शन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं, और भी इनके सारे जो पावर्स हैं, यू हैव टू रीड देम। द स्टेट एग्जीक्यूटिव: एज पर द कॉन्स्टिट्यूशन द एग्जीक्यूटिव पावर्स ऑफ द स्टेट वास्ट इन द गवर्नर, but in practice the governors of the states are constitutional heads. In practice, complete administration of the state is run by the council of ministers, whose head is the chief minister. The cabinet is jointly responsible to the Vidhan Sabha for all its actions. कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से देखा जाए तो एग्जीक्यूटिव पावर्स जो होते हैं वो गवर्नर के पास होते हैं किसी भी स्टेट के, लेकिन प्रैक्टिस में ऐसा नहीं होता है। प्रैक्टिकली जो सारे पावर्स होते हैं वो चीफ मिनिस्टर के पास होते हैं। Appointment of the governor is made by the president. In practice, appointment of the governor is made by the president as per the advice of the Union Council of Ministers. In the absence of the governor, the Chief Justice of the High Court of the state holds the post of the governor of the state. तो गवर्नर की अपॉइंटमेंट जो है गवर्नर का वो प्रेसिडेंट के द्वारा किया जाता है, और यदि गवर्नर एब्सेंट हैं, यदि गवर्नर का अपॉइंटमेंट नहीं हो पाया किसी कारणवश, तो फिर हाई कोर्ट के जो चीफ जस्टिस होते हैं वो गवर्नर का पोस्ट जो है उसको संभालते हैं। क्वालिफिकेशंस फॉर द पोस्ट ऑफ गवर्नर: you have to read these qualifications. He should be a citizen in India. He should be completed 35 years. He should not be any office of profit of the union or state. Should not be a member of the parliament or legislative assembly. You will read the powers and assumption of office by the governor and pay allowance and special privilege by the governor. Now, powers and function of the governor. The governor is the constitutional head of the state. The position of the governor is the same in the state as is of the president in the center. The powers of the governor are as under: powers in respect of the executives and legislative powers. तो गवर्नर जो है उनके पावर्स उसी तरह से होते हैं जैसे कि एक राष्ट्रपति के सेंट्रल में होते हैं, उसी तरह से एक गवर्नर का स्टेट में पावर होता है। द गवर्नर अपॉइंट्स द चीफ मिनिस्टर: मुख्यमंत्री की नियुक्ति गवर्नर करता है। जो जिस पार्टी को ज़्यादा वोट मिलते हैं वो अपने अध्यक्ष को नियुक्त करते हैं और वही चीफ मिनिस्टर होता है।
The governor also appoints the general advocate general, chairman of the public service commission and other senior officers of the state. Now legislative powers. अब कुछ विधायी शक्तियाँ भी होती हैं, legislative powers भी होती हैं गवर्नर के पास, to promulgated ordinance, financial powers, other powers. The governor is an essential part of the government. He summons meetings of the legislative assembly. He can dissolve the assembly on the advice of the chief minister after the elections and in the beginning of the session of the legislative assembly. He addresses it. He, as per need, he can send messages to the legislatures. Governor assent in essential on the bills passed by the legislative assembly for reconsideration. If again the bill is passed by the legislative assembly and sends it to the governor, it is necessary for the governor to give assent to it. तो गवर्नर जो होता है वो विधानसभा का एक महत्वपूर्ण अंग होता है और वह समन्स भेज सकता है, बैठकें बुला सकता है, उन्हें स्थगित भी कर सकता है और उन्हें खत्म भी कर सकता है, समाप्त विसर्जित भी कर सकता है, समाप्त भी कर सकता है। वो विधानसभा को भंग भी कर सकता है इलेक्शन के बाद या फिर जब जो सेशन शुरू होता है तब जो गवर्नर होता है वो अपना भाषण भी देते हैं और ज़रूरत पड़ने पर जिस तरह की आवश्यकता होती है उस तरह से वो मैसेजेस भी वो लेजिस्लेचर्स को भेज सकते हैं। लेजिस्लेचर असेंबली में जो भी बिल पास होते हैं उनमें गवर्नर की स्वीकृति ज़रूरी है। इसके साथ गवर्नर जो है वो समन्स भी जारी कर सकते हैं और भी उनके पास फाइनेंशियल पावर भी होती हैं और जब उनको ज़रूरत होती है कि इस किसी भी स्टेट में और प्रावधान के हिसाब से, संविधान के हिसाब से काम नहीं चल पा रहा है तो फिर वो राष्ट्रपति को इसकी सूचना देते हैं और राज्यपाल की रिपोर्ट के बेसिस पर ही राष्ट्रपति राज्य में जो है वो संकट काल इमरजेंसी को लागू करता है। तो चिल्ड्रन आप देख रहे हैं धीरे धीरे कि सभी के पास बहुत अपने अपने पावर होते हैं जिसके हिसाब से कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से सभी काम करते हैं और जो हमारा देश है संविधान के हिसाब से, संविधान के अकॉर्डिंग चलता है। सभी अपनी अपनी ड्यूटीज़ को निश्चित रूप से सही तरीके से निभाते हैं। इन द नेक्स्ट वीडियो वी विल स्टडी अबाउट द चीफ मिनिस्टर।